heat of reaction at constant pressure or enthalpy change or heat change at constant pressure. तीनों एक ही, you can have that QP is equal to delta H. Now दूसरा होता है heat of reaction at constant volume. Heat of reaction at constant volume, that is a QV, and this is nothing but what? Change in internal energy. Change in internal energy, that is equal to heat change at constant volume या फिर heat of reaction at constant volume. तो अभी हमारे पास दोनों का रिलेशन भी था, QP is equal to QV plus delta n RT, so which has been completed previously. इसके हमने प्रॉब्लम भी स्टार्ट किए थे. So enthalpy change at constant pressure, जो heat changes होते हैं at constant pressure पे, they are expressed in terms of enthalpy change. This is also called as heat of reaction at constant pressure. जो internal energy में change आएगा, that is called as a delta U, and this delta U is equal to heat of reaction at constant volume. Constant volume पे जो भी heat changes रहेंगे, that are equal to change in internal energy. So change in internal energy is equal to heat absorbed or heat change at constant volume. Then we can have this one, delta H is equal to delta U plus P delta V. Now instead of this you can have delta nRT. Now इसमें जो delta n है, that is what? A change in number of moles of gaseous product and gaseous reactant. यहाँ पे gaseous word बहुत important है. Delta n, this is what? Number of moles of gaseous product, that is N2. Number of moles of gaseous product, that is N2, minus number of moles of gaseous reactant. प्रीवियसली हमने एक दो प्रॉब्लम भी किए हैं इसके ऊपर. सो दिस इज नथिंग बट हमारे लिए शॉर्ट में हम इसको N2 माइनस N1 लिखते हैं. नाउ R जो है वो तो जूल पर मोल पर केल्विन में इतना लिखते हैं हम, बट इन सम प्रॉब्लम R का जो वैल्यू है वो कैलोरीज या किलो कैलोरीज में होता है, दैट इज इक्वल टू 2, तो उस पर भी हमको ध्यान देना होता है. तीसरी बात, यहाँ पे जो वैल्यूज है वो यदि किलो जूल में है डेल्टा H का या फिर डेल्टा U का वैल्यू यदि किलो जूल में है, तो हमारा जो R है कैपिटल R वो भी किलो जूल में आना चाहिए, एंड इन दैट केस यू कैन यूज दिस वैल्यू. नाउ दिस इज बिकमिंग किलो जूल पर मोल पर केल्विन, और T जो है वो हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा. सो यहाँ पे डेल्टा nRT के हिसाब से ही सारी चेंजेस इसके अंदर होने वाली है. यस, प्रीवियसली वी हैव कंप्लीट ऑल दिस थिंग्स. नाउ यदि हमारे पास में कंडीशंस के हिसाब से डेल्टा n इज इक्वल टू 0 है, मतलब व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल, तो डेल्टा n 0 हो गया. इफ डेल्टा n 0, देन QP is equal to QV, or you can have that delta H is equal to delta U. Change in enthalpy is equal to change in internal energy, या फिर you can say that heat of reaction at constant pressure is equal to the heat of reaction at constant volume. Secondly, if number of moles of gaseous product are less, gaseous product के number of mole जो है वो कम है as compared to that of gaseous reactant, in that case हमारा जो डेल्टा n है वो नेगेटिव आ जाएगा. अब यदि डेल्टा n नेगेटिव है, देन QP minus QV will have the negative value.
तो इसका मतलब ये होगा कि ये ज्यादा है और ये कम है, तो यू कैन हैव द कंक्लूजन दैट QP is less than QP, or you can have that delta H less than delta U. तो ये डिफरेंस जो है वो नेगेटिव आएगा, दैट इज योर सेकंड कंक्लूजन. देन थर्ड वन, if N2 is greater than N1, then delta N जो है वो पॉजिटिव आएगा. इन दैट केस डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव आएगा. इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, दैट इज QP greater than QV, or you can have that delta H, change in enthalpy, is greater than change in internal energy. So these are the conclusions from the value of delta N. If delta N is 0, then QP and QV are equal, or you can say that change in enthalpy is equal to change in internal energy. यदि ये नेगेटिव आता है, मतलब N2 is less than N1, N2 is less than N1, then that will be negative. In that case difference नेगेटिव आ रहा, मतलब सेकंड क्वांटिटी जो है वो बड़ी हो गई, तो पहली क्वांटिटी जो है वो लेस देन रहेगा फर्स्ट दिस वन, QP is less than QV, or you can say that change in enthalpy is less than change in internal energy. And then third one, डेल्टा एन पॉजिटिव आ जाता है आपका. ये कैसे पॉसिबल है? जब गैसियस नंबर ऑफ मोल्स जो है वो ज्यादा रहेंगे प्रोडक्ट साइड में, तो इन दैट केस दैट डिफरेंस इज पॉजिटिव. सो डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा, मतलब QP इज ग्रेटर देन QV, और डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा U. नाउ विल गो फॉर द सम ऑफ द प्रॉब्लम्स. Okay. The heat of reaction at constant volume, C10H8. Okay. At 298 Kelvin. At constant volume is -1228 1228.2 kilojoule at 298 Kelvin. At constant pressure. Reaction is given C10H8, जो कि सॉलिड है, +12/2. Then that gives a 10 CO2 plus 4 H2O, that is liquid. Okay, so this is your problem, in which that particular compound C10H8, that is unsaturated हाइड्रोकार्बन ही होगा, अनसैचुरेटेड ही होगा, जिसमें हाइड्रोजन कम दिख रहा है काफी, मतलब अनसैचुरेटेड हो गया. तो इसको हमने बर्न कर दिया बाय यूजिंग ऑक्सीजन, सो दैट जितने कार्बन उतने CO2 कंबशन प्रोसेस में, जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड का खासतौर से, जितने कार्बन उतने CO2, जितने हाइड्रोजन उसके आधे वाटर, हाफ द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी फॉर्म इफ देयर आर n नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. सो सबसे पहले हम इसमें से कलेक्ट करेंगे, या नंबर ऑफ मोल्स, ये तो हमारे खेल में नहीं आएगा, ये गैसियस है, ये नहीं रहेगा. सो डेल्टा N निकालना है आपको, N2 minus N1, N2 on this side 10, on this side 12. Okay.
देन आर का जो वैल्यू है वो जूल में है, हमको नहीं चलेगा, हम इसको किलो जूल में कर लेते हैं। देन टेम्परेचर इज गिवन 298 Kelvin. One more thing, that the heat of reaction at constant volume is given, means what? QV minus 1228.2 kilojoule. You have to find the heat of reaction at constant pressure. So we can have that formula, QP is equal to QV plus delta nRT. So हमारे पास QV है -1228, बाद में डेल्टा एनआरटी हमने निकाला नहीं है तो यहाँ करना पड़ेगा -2 इंटू पूरा जो वैल्यू आएगा डेल्टा एनआरटी का वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम, या फिर सेपरेटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। So QP -1228.2, डेल्टा एन का ऑलरेडी वैल्यू हमने निकाल लिया है -2, डेल्टा एन का जो वैल्यू है वो -2 है। ओके, देन आर का वैल्यू है एंड देन 298। ओके, .3 6.6 4.99। ओके, या 955। So your answer will be in kilojoule and that should have the negative sign। 5 ऐड कर देते तो 33 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, -1233 अप्रोक्सीमेटली होगा। $1233.1। So this will be the value of that QP, heat of reaction at constant pressure. The next one, the heat of reaction C6H12O6. Okay, at constant volume, at constant volume is 654 किलो कैलोरीज में है 654.48। ओके, किलो कैलोरीज। कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन at constant pressure। R is equal to 2 कैलोरीज दिया है, 298 केल्विन है, रिएक्शन है C6H12O6, सॉलिड है, जितने कार्बन उतने CO2, जितने हाइड्रोजन उसके हाफ द नंबर ऑफ वाटर।
ठीक, नाउ दिस विल बी द बैलेंस वन, 12 और 6 18। ओके, टेम्परेचर इज अगेन 298 केल्विन। आर का जो वैल्यू है वो कैलोरीज में है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो वैल्यू है वो किलो कैलोरीज में है। बी केयरफुल, -654.48 किलो कैलोरीज में है। तो इन दैट केस हमको आर के हिसाब से काम करना है किलो कैलोरीज में। कि सबसे पहले गिवन रिएक्शन में डेल्टा एन जो है N2 - N1, ये गैस है आपके लिए, इसको पकड़ना चाहिए 6, और ये गैस है आपके लिए, बाकी ये सॉलिड, वो लिक्विड छोड़ दिया आपने, क्या हो गया 0। जब डेल्टा एन 0 आ गया तो मेरे लिए तो दिवाली हो गया। डेल्टा एन आर टी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर QP इज इक्वल टू QV इज इक्वल टू माइनस कितना 654.48 किलो कैलोरी। कुछ भी नहीं करना पड़ा, जहां डेल्टा एन 0 आ जाता है वहां पे QP इज इक्वल टू QV होता है, और यू कैन से दैट डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। मतलब यहाँ इंटरनल एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज भी बोला होता तो भी ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो गया, इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी हमको, बहुत सिंपल था। यू कैन से दैट QP इज इक्वल टू QV, और डेल्टा H एंथैल्पी चेंज भी बोला होता तो भी हम उतना ही लिखते थे, -654.48 किलो कैलोरीज। बिना दिक्कत के सॉल्व हो गई प्रॉब्लम तो, राइट। ओके, ऐसी आए पेपर में दिवाली हो जाती है। Is that over? नेक्स्ट करेंगे। सो किसी रिएक्शन का डेल्टा H और डेल्टा U का डिफरेंस QP या QV का डिफरेंस निकालने के लिए बोला है एट 298 केल्विन, एंड द रिएक्शन इज लिक्विड इथेनॉल है ये, इसको बर्न कर दिया बाय यूजिंग ऑक्सीजन। अगेन जितने कार्बन उतने CO2, टॉइस CO2 गैस होगा, जितने हाइड्रोजन उसके आधे वाटर, थ्राइस H2O L। ओके, अब ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं, वहां पे 4 3 7 1 है, 3 होना। ओके, हो गया 3 2 6 और 1 7, 4 और 3 7, मतलब हो गया। अभी इसमें कुछ भी नहीं करना है, डेल्टा एन का वैल्यू सिर्फ निकालना है हमको फॉर दिस रिएक्शन। डेल्टा एन इज इक्वल टू N2 - N1। ओके, तो N2 जो है वो 2 है और ये 3 है। ओके, अब डेल्टा NRT करना है, दैट इक्वल टू माइनस आर का वैल्यू कैलोरीज में ले लिया तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, 8.314 जूल में लेते हैं, तो 298। तो अभी यहाँ पे डेल्टा NRT जो है, थोड़ी देर पहले 4.995 आया था, उसके आधे आएगा, है ना। यस राइट, 2.477।
or you can have that delta H minus delta U will be or you can say that minus RT. What is the difference? Minus RT. You can say that minus RT. ऐसे भी ऑप्शंस होता है, एमसीक्यू यदि है तो उसमें कैलकुलेशन की बजाय इतना ही होता है, माइनस RT, माइनस 3/2 RT, minus 5 RT. These are the options and you have to select one of them. Very simple. Following data now. Okay, next करेंगे. The heat of combustion of ethane. Heat of combustion of ethane gas at constant volume and at constant pressure. कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर दोनों वैल्यूज है. कांस्टेंट वॉल्यूम पे है -90 और कांस्टेंट प्रेशर पे है -96 किलो जूल. At same temperature. Calculate the temperature for this combustion reaction. Calculate temperature for combustion reaction. R का जो वैल्यू है वो है 0.008 किलो जूल पर मोल पर केल्विन. Okay, somewhat different. That QP and QV are given, R is given, temperature is same, and you have to find the same temperature at which this change is carried out. Okay, the combustion of ethane. सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी combustion of ethane. ये लिखते आना चाहिए अभी तो. गिवन बाय किसको कंबशन में रखना है? इथेन को. ओके, कैसा होता है इथेन? C2H6 गैस. कंबशन में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा. अभी थोड़ी देर पहले बताया था ये तो गैस है, ये भी गैस है. जितने कार्बन उतने CO2, मतलब 2 प्लस जितने हाइड्रोजन उसके आधे वाटर के लिक्विड हो गया. अभी ऑक्सीजन देखेंगे हम तो ये 4 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, 4 + 3 7. तो यहां मैं 3.5 लिखना चाहिए मेरे को, तो मैं लिखता हूं 7/2. ये हो गया 3.5 × 2 दैट इज 7. थर्मोडायनेमिक्स में ये चलता है 7/2. 3.5 भी लिख सकते हैं आप. सो अभी हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट है 2, दैट ऑफ रिएक्टेंट है 1 + 3.5. 1 + 3.5 that is 4.5 will be the number of moles of gaseous reactant. तो
तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेल्टा एन निकाल लेते हैं। यस, N2 माइनस N1, ये समझ में आ गया। ये 4 हो गया ऑक्सीजन और ये 3 हो गया 7, तो इधर में तो 2 × 2 करना है, तो 3.5 लिखना था मेरे को, मैं 3.5 नहीं लिखा, मैंने लिखा 7/2 मीन्स 3.5 × 2 दैट विल बी 7, सो N2 is 2 minus 1 plus I can write 3.5, 90 and 96, okay. टू 2.5 हो गया। नाउ एक के साथ ही हमारे पास में है QP 96 किलो जूल, QV 90 किलो जूल, ओके, ये भी गिवन है। सो QP माइनस QV, so that comes out to be 6, राइट, ओके, मैं रख देता हूं यहाँ पे 96 माइनस 90 इज इक्वल टू डेल्टा NRT। देखो T निकालना है, सो T विल बी इक्वल टू 6 अपॉन, is it so, minus NRT? These values are negative, I think. Yes, the values with negative है, right? These values are negative, so that comes out to be -6. Then delta N is -2.5, R is 8 ये किलो जूल में, बी केयरफुल। तो यहाँ पे जो R है वो भी किलो जूल वाला चलेगा, नहीं तो बस गया प्रॉब्लम। ये आ गया डेल्टा N, ये T निकालना है मेरे को, तो दिस विल बी इक्वल टू, ये 6000 कर देते हैं, ओके, देन 8 × 2.5, 30, 2 आएगा, ओके, 0.02 लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये कर दिया कि इसको 8 बना दिया, इसका 1000 ऊपर चला गया, कुछ ज्यादा ही हो गया, राइट, ये किलो जूल था, ये भी किलो जूल था, इसका 1000 ऊपर गया, 6000 डिवाइडेड बाय 2.5 × 8, 20, right, 20, so that comes out to be 300 Kelvin. So temperature of this reaction is 300 Kelvin. Any doubt with this now? Shall we go for the next? The heat of combustion of benzene at 298 Kelvin is given. फिर से यहाँ एक रिएक्शन लिखना जरूरी होता है, then you can go for the problem. Okay. The heat of combustion of liquid benzene. Heat of combustion of liquid benzene heat of combustion of liquid benzene at 298 Kelvin is -3267.6 kilojoule at constant pressure. At constant pressure, then you have to find heat of combustion at constant volume.
Okay, this is your problem. Liquid benzene is burnt in excess of air, that is called as combustion. जब लिक्विड बेंजीन को आप बर्न करेंगे तो नेचुरली यू विल गेट CO2 एंड वाटर बिकॉज दिस इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो यहां पे रिएक्शन लिखना जरूरी है. यहां पे डेल्टा एन गलत नहीं होना चाहिए. डेल्टा एन गलत हो गया तो फिर तो गया प्रॉब्लम आपका. तो सबसे पहले हम करेंगे कंबशन ऑफ लिक्विड बेंजीन. C6H6 ये आपका लिक्विड है प्लस O2 गैस है. भी बताया मैंने जितने कार्बन उतने CO2 बना दो. ओके. प्लस जितने हाइड्रोजन है उसके आधे वाटर. ओके. नाउ ऑक्सीजन काउंट करेंगे तो ये हो गया 12 प्लस 3. ये 3 वाटर में टोटल 3 हो गया और CO2 का हो गया टोटल 12 मतलब 15. तो यहाँ 7.5 लिखना है. 7.5 इंटू 2 15 होता है. मैंने लिखा 15/2. 15/2 कितना होता है 7.5. 7.5 इंटू 2 कितना होता है 15. यहाँ पे कितना है 6 इंटू 2 12. 12 प्लस 3 15 मतलब बैलेंस हो गया. अभी डेल्टा एन निकालते हैं. या 6 माइनस ये करना. ये तो लेंगे नहीं हम. ये लिक्विड है वो भी लिक्विड है. 7.5 सो आई कैन राइट -1.5. देन आर देखिए वो किलो जूल में है. यू कैन टेक दिस वैल्यू. D is 298 केल्विन. तो इस पर से हम सबसे पहले डेल्टा एनआरटी निकाल लेते हैं. -1.5 इंटू 0.008 इंटू 298. So that will be your difference. वो सारा किलो जूल में आएगा. Yes, correct. 3.576. Now we can have that at constant pressure is given. QP is given -3267.6. This is in kilojoule, and then you have to find QV. So shall I wipe the per part? Okay. मैं इसको इधर ले लेता हूं. -3267.6 ये माइनस और वो भी माइनस. So this value will be प्लस. ओवरऑल आंसर जो है वो नेगेटिव ही होगा. माइनस उसमें से 3 निकाल दो. 36 नहीं होगा. इसमें से 3 कम होगा. 26 होगा. नहीं संभल के थोड़ा. यहाँ पे गड़बड़ हो गई तो पूरी मेहनत पानी में जाती है. 3267.6 या 3264 माइनस 3267 -3 कर दिया मैंने तो 64 हो गया. 3264.024. ओके 24. Okay. So in this way, number of problems we have solved on this.
Along with this, we can have that 3 solved problems in the text. Three solved problems are there in the textbook on page number 77. Have you gone through that? Yes, आपने किया है क्या? I think that was given to you in the homework. The following is spontaneous now. या पेज नंबर 77 पे एक लिक्विड बेंजीन की प्रॉब्लम दिख रही है, लेकिन वो नहीं है हमारी। या हमको 73 पे जाना था। पेज नंबर 73 पे जो प्रॉब्लम्स है 4.7, 4.8 and 4.9. Have you solved these 3 problems? Because in the unsolved section there is no problem at all. Okay. या 4.7, 4.8 and 4.9. यदि आपने नहीं किया है तो यू कैन गो थ्रू देम। कौन सा 4.7 है? टेक्स्ट बुक है आपके पास, पेज नंबर 73 पे जाना है। पेज नंबर 73 पे 4.7, 4.8 and 4.9. These 3 problems are there. You can go through them. यदि नहीं किया होगा आपने then वर्क डन वाली कोई प्रॉब्लम है नहीं है। ओके, देन द नेक्स्ट पार्ट विल बी फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। 1 बजे लेंगे हम, बिकॉज दोपहर में सराउंडिंग जो है काफी डेंजरस हो जा रहा है। कभी पावर फेल्योर, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम, बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं। सो बेटर है हम लोग 1 बजे कंटिन्यू करेंगे कुछ दिन, ठीक है? यहाँ रुकेंगे हम। वो 3 प्रॉब्लम जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग देख के कर लेंगे उसको ठीक से, ठीक है? चलो खाना खाने का टाइम हो गया, भाग जाओ। कहाँ देख रहे होंगे सब? ओके, यहाँ रुकते हैं। एट 298 केल्विन एक टेम्परेचर वैल्यू है आपके पास में। देन दिस इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज QV, और यू कैन से डेल्टा U। देन R का वैल्यू है हमारे पास में, एंड दिस इज योर रिएक्शन। सो फॉर ए गिवन रिएक्शन हमारे पास में क्या है देखना चाहिए हमको। एक तो ये है QV का वैल्यू हमारे पास में -654. Okay, this is given. Now this reaction contains 6 moles of gaseous reactant and 6 moles of gaseous product. ये solid है, वो liquid है, वो हमारे consideration में नहीं आएगा। So delta N is equal to number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactant, and that is 6 minus 6, and it will be 0. ये कंसीडर होगा हमारे प्रॉब्लम के लिए, और ये पार्ट कंसीडर होगा बिकॉज वही 2 गैसियस सब्सटेंसेस है हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। सो डेल्टा N 0 आ गया। सो इन दैट केस QV हमारे पास में है, तो आगे जाने की जरूरत नहीं। QP आपको निकालना था, तो आपके पास सीधा फॉर्मूला है QP इज इक्वल टू QV प्लस डेल्टा nRT, दैट विल बी इक्वल टू QV। ये तो 0 हो गया आपका टर्म। सो इन दैट केस that is equal to minus 654.48 किलो कैलोरी। ना टेम्परेचर का यूज हुआ इसमें, ना R का यूज किया हमने, कुछ भी नहीं, बिकॉज आपका डेल्टा N 0 जब हो जाता है सो वो पूरा टर्म जो है डेल्टा nRT। सो व्हाट विल बी द डिफरेंस? द डिफरेंस बिटवीन QP एंड QV will be 0, और what will be the value of QP? that will be same as that of QV। जो QV का वैल्यू होगा वही वैल्यू इसका भी होगा। फिर दूसरा करेंगे।
इज दिस और चलते नेक्स्ट के लिए। For the following reaction at 25 degrees Celsius, enthalpy change for the reaction सेवन है हमारा सी सॉलिड प्लस थ्राइस H2 प्लस O2 ओके गैस है। Enthalpy change for the reaction at constant volume is minus 428 minus 428 kilojoule. Calculate heat of reaction Okay, this is your reaction that बेंजोइक एसिड यहाँ बनाया हमने गैसीय स्टेट में और यहाँ पे एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज -428. Okay, you can have that QV that is equal to delta U that is -428 किलोजूल. हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम मींस QV या फिर डेल्टा U का वैल्यू हो गया -428 किलोजूल. Then a temperature is given 25 degrees Celsius, so you can have that in Kelvin, 298 Kelvin. Then अभी देखिए R का वैल्यू ये किलो जूल में है तो वो भी आपका ऐसे होना चाहिए. अभी किलो जूल में आ गया 10⁻³ लगा दिया हमने इसके साथ में तो ये हो गया किलो जूल में. ये ऐसे कर देते हैं. अभी डेल्टा एन के लिए चलते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट N2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट. देखिए ये हमारे खेल में नहीं होगा, सॉलिड है ये कार्बन. यहाँ पे थ्राइस प्लस 1 दैट इज 4 और वो 1 सो 1. ये प्रोडक्ट साइड में 1 मोल हो गया माइनस N1 3 + 1. So this value comes out to be 1 - 4 -3. Now once we have that -3 डेल्टा एन आ गया तो आपको डेल्टा एनआरटी अलग से निकाल लेना चाहिए या फिर पूरा डायरेक्ट फॉर्मूला रखेंगे उसमें भी निकाल सकते हैं. एज पर द कन्वीनियंस हमको डेल्टा एनआरटी निकाल लेना चाहिए सेपरेटली. डेल्टा एन समझ में आ रहा होगा आपको कि कैसे आ गया. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट that is single product is there C6H5COOH that is benzoic acid. On the reactant side 3 moles of that hydrogen and 1 mole of oxygen was there. कार्बन जो है वो हमने कंसीडर नहीं किया है because that is a solid. QP is equal to QV plus delta nRT. So how much it is? -428. Delta R का वैल्यू
8.314 10 रेज टू द पावर -3 और टेम्परेचर जो है दैट शुड बी 298 केल्विन। तो अभी ओवरऑल ये तो माइनस है 428, ये भी माइनस हो जाएगा। क्या करते हैं 8.314 ये -3 और इसको हटा देते हैं तो 0.298। ओके, सो ओवरऑल जो आंसर होगा दैट विल बी नेगेटिव। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस साइन विद दैट? हीट इज इवॉल्व्ड। दिस इज -428, ये 3 है, 24 इंटू 3 7.2। ओके 7.2 लिख देते हैं हम 43। सो ओवरऑल जो आंसर आएगा दैट विल बी -435.43। Now this will be in kilojoule. सो QP हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो कंपैरेटिवली ये जब नेगेटिव आता है तो ज्यादा आएगा। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? हीट इज इवॉल्व्ड। चलते और एक करेंगे। Okay, delta U for the reaction B2S6 plus change in internal energy, change in internal energy for the reaction B2S6 गैस है प्लस थ्राइस O2 is equal to B2O3 solid B2O3 solid है प्लस थ्राइस H2L that is liquid is -214 2143.2 at 298 Kelvin. Calculate the enthalpy change.
Okay, so this is your diborane B2S6 which is a gaseous compound. It is burnt in excess of air. इसको जला दिया हमने by using air or oxygen. You get B2O3 solid plus thrice H2O liquid. तो यहाँ प्रोडक्ट साइड में एक भी गैसियस कंपाउंड नहीं है. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट ऑन दैट साइड विल बी जीरो. तो हमारा जो रिएक्शन है फ्रॉम दैट N2 विल बी जीरो. N1 की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 plus 3 that is 4. So that you can have delta N is equal to N2 minus N1. N2 0 है आपका, N1 4 है. यहाँ थोड़ा सा भी मतलब गलती हो गया आपका N1 N2 सब्स्टिट्यूट करने में तो प्रॉब्लम जा सकता है. ओके, तो पहले डेल्टा एनआरटी निकाल लेते हैं अभी. या -4 ये किलो जूल में है वैल्यू, तो हमको भी किलो जूल वाला ही आर यूज करना चाहिए. तो सबसे पहले हम यही वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. $9.91. Okay, now this will be in kilojoule. Now we have that delta U is also there in the problem. Delta U change in internal energy means what? Delta U is minus 2143.2. ये भी किलो जूल में है. तो अभी हमारा जो डेल्टा एच है वही निकालना बाकी है. डेल्टा एच विल बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनआरटी. -2143.2 एंड डेल्टा एनआरटी का वैल्यू हमने निकाल दिया है 9.91. ओके, सो फाइनली जो आंसर है दैट विल बी इन किलो जूल. तो 153.1. So in this way, this is your another problem related to
द हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, मीथेन को बर्न करना है at constant volume and temperature is also mentioned at 298 Kelvin. So that delta U का वैल्यू हो गया हमारे लिए, you can say that QV. तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, कंबशन ऑफ मीथेन मीथेन को बर्न करना है इन एक्सेस ऑफ एयर। तो यहाँ अभी एक O2 लिया है मैंने, जितने कार्बन होंगे कंबशन प्रोसेस में उतने CO2 बनाने हैं। यहाँ 2 रहे तो 2 CO2, 4 कार्बन है तो 4 CO2, बेंजीन है तो 6 CO2, और डायरेक्ट में भी जितना कंपाउंड में कार्बन होगा उतना CO2 बनाना है। ओके, CO2 गैस हो गया। देन 4 हाइड्रोजन आइटम्स आर देयर, जितना हाइड्रोजन होगा उसका हाफ, 4 है तो 2 वाटर बनाने हैं आपको। नाउ ऑन द प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन जरा ज्यादा दिख रहा है, 2 और 2 4 इधर में नहीं है, तो सबसे पहले इसको बैलेंस कर लेना चाहिए। ओके, नाउ दिस इज योर गैस, दिस वन इज गैस, दिस वन इज गैस, बट दैट फाइनली वाटर इज ए लिक्विड, तो उसका नंबर ऑफ मोल हमारे खेल में नहीं आएगा। तो अभी डेल्टा एन इज इक्वल टू करते हैं N2 माइनस N1। N2 जो है वो सिर्फ एक है आपका गैसियस प्रोडक्ट कंसिडर्ड, रिएक्टेंट साइड में 1+2 होना चाहिए -2। नाउ हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब वो QV हो गया आपका -885.2। देन QP आपको निकालना है, एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज नथिंग बट द एंथैल्पी चेंज। तो अभी आपका डेल्टा एन भी है तो डेल्टा एनआरटी निकाल लेंगे आप, दैट विल बी -2 इंटू आर का वैल्यू फिर से किलो जूल में ही लेना चाहिए, 8.314, ये किलो जूल हो गया इंटू 298। तो अभी आपको QP निकालना है, एंथैल्पी चेंज निकालना है, मतलब QP निकालना है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, सो QP का वैल्यू है हमारे पास में कैलकुलेट करने के लिए 2 इंटू 8.314 इंटू 298। ओके, $4.955। ये किलो जूल में आना चाहिए, तो हमारा जो वैल्यू है गिवन वो भी किलो जूल में, ये भी किलो जूल में, तो कोरिलेट करने में आसानी होगा। $890.1। Okay, so this is the enthalpy change for the reaction, or you can say the heat change at constant pressure. Okay, मोनिका था मैसेज में।
चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए बोला है फॉर द रिएक्शन at 298 Kelvin. So enthalpy is 92.38. $92.38 kilojoule. Okay. So here is the problem. N2 plus thrice H2 is equal to twice NH3 gas. This is the reaction in which a change in internal energy is to be found out, for which the enthalpy change is given, that is delta H for the reaction is minus 32.8. So what is that? Delta H, how much? Minus 92.38 kilojoule. Okay, then you have to find change in internal energy, so you can have that delta U. ये हमारा QP है और ये QV है. Then a temperature is given 298 Kelvin. Then R का वैल्यू यहाँ पे 1 किलो जूल में, तो दूसरा भी किलो जूल में आना चाहिए. 10 raised to the power -3 किलो जूल पर मोल पर केल्विन. देन सबसे पहले हमको डेल्टा एन निकाल लेना चाहिए. डेल्टा एन के लिए देखिए प्रोडक्ट साइड में कितना है, ट्वाइस. सो यहाँ पे हमारे पास में N2 number of moles of gaseous product is 2 and on reactant side there is a 1 plus 3, that is total 4. So delta N is equal to N2 minus N1. N2 is 2 minus 4, that will be -2. Now डेल्टा एनआरटी निकाल लेते हैं आप, तो आपका QP और QV वाला रिलेशन काम कर जाएगा. $4.955. डेल्टा एनआरटी निकाल लेंगे. अभी ये मिटा देते हैं हम नीचे से. -2 या R का वैल्यू किलो जूल में. टेम्परेचर जो है वो 298 है. ओवरऑल कैलकुलेशन जो है बहुत बार कर लिया आपने तक का. 4.955 किलो जूल. नाउ हमारे पास में QP है, QV निकालना है. सो QP इज इक्वल टू QV प्लस डेल्टा एनआरटी, राइट. ओके, हमको ये निकालना, मतलब इसको छोड़ देना, इसको इधर लेके आते हैं. सो QP माइनस डेल्टा एनआरटी. So this will be your QV, or you can say that change in internal energy. अभी QP का वैल्यू आपके पास में कितना है, -92 -92.38 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4.9, 97 के आसपास आंसर हो जाएगा आपका. Yeah, QP is -92.38 minus 4.9. एक स्टेप बढ़ जाएगा, ठीक है.
अभी वो ऑलरेडी माइनस था, माइनस माइनस कर दिया आपने तो प्लस हो गया। So that comes out to be 87.42. कि 4.7, 4.8 और 4.9 ये तीनों किए हैं आपने टेक्स्ट बुक में, जो है पेज नंबर 73 पे है। 4.7, 4.8 और 4.9 तीनों हो गया। सॉल्व प्रॉब्लम्स है पेज नंबर 73 पे। 4.7, 4.8 एंड 4.9 तीनों किए हैं कि चेक करो 73 नंबर पे, पेज नंबर 73 पे। यस और नो? पेज नंबर 73 पे जो तीन प्रॉब्लम है सॉल्व किए हुए, वो आपने किए हैं क्या? या पार्थ? ओके, चेक कर लो। क्या सुरभि? नहीं किया है? ओके, नहीं किया हो तो यू कैन गो थ्रू दीज 3 सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन दैट पेज नंबर 77, 4.7, 4.8 और 4.9। यहाँ हमको रुकना है। ओके, थैंक यू। हाँ, तो टेक्स्ट बुक ओपन करके उसमें से सॉल्व करना है अभिराज। तीनों सॉल्व है, अनसॉल्व में एक भी नहीं है अभी, और सेम लाइन है, तो यू कैन डू दैट 3 सॉल्व प्रॉब्लम्स। ओके, यहाँ रुकेंगे हम।